If you are preparing for CAT, we at Unacademy conducting a All India mock test AIMT this 16th October. Why this mock test conducted by us, which is AIMT, is so important for you? There are many reasons. Some of them, first of all, more than 50,000 students enrolled into this, and this tally is going to be more. So if you give this exam live, you will know your rank among these students and you can work accordingly, because 16th October के बाद you have around 40 days for your CAT. So अगर आप AIMT देते हो, आपको अपना रैंक पता लगेगी all among all these 50,000 odd student. So you can work accordingly. अगर आपका कोई कॉन्सेप्ट वीक है तो आप उस पीरियड में उस चीज को इंप्रूव कर सकते हो. तो आपको ये मॉक टेस्ट जरूर देना चाहिए. एंड सेकेंड पॉइंट, दिस इज फ्री फॉर ऑल द स्टूडेंट. आप कहीं के भी हो, किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट के हो, कहीं हो, यू कैन गिव दिस टेस्ट फॉर फ्री. इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है. यू कैन गेट दिस लिंक इन द डिस्क्रिप्शन. और इसको फ्री अटेम्प्ट करने के लिए आपको कोड याद रखना है, भारत गुप्ता लाइव. द थर्ड बेनिफिट, टॉप 1000 स्टूडेंट विल गेट देयर कैट फी रिफंडेड. बहुत बढ़िया बात है ना. अगर आप टॉप 1000 में आते हो तो आपने जो भी कैट में फी सबमिट की होगी, दिस विल बी रिफंडेड. फोर्थ पॉइंट, टॉप रैंक विल गेट मैकबुक एयर laptop. Second winner will get iPhone, and 3 to 7 winner will get 3, 4, 5, 6, 7 rank will get Android smartphone. So this is very important. एक तो आप live test देकर you can check your performance, and these 66 questions are prepared by our top educator. Quant paper is prepared by me, और हमारे top educator ने paper prepare किया. तो this is the right time to attempt this test, which is AIMT. This is AIMT, which is scheduled on this 16th October. तो ये टेस्ट आपको 16 अक्टूबर को जरूर देना है. ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट इस टेस्ट को अटेम्प्ट करें, so that you will know your performance. And with this test we are conducting a mega boot camp, a 12 hours marathon session in which you will know quant session. You will know how to solve quant in exam, LRDI, VARC, strategy to attempt all the questions, how to select correct question, how to leave them. And with this there are some other goodies, gift voucher for you. So आपको ये जो बूट कैंप है ये 14-15 को होगा, तो ये भी अटेंड करना है. इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है. बहुत सारे बेनिफिट है आपको. तो फ्री टेस्ट जो हमारा AIMT हो रहा है, ये मस्ट है हर स्टूडेंट के लिए. 16 अक्टूबर यू हैव टू अटेम्प्ट दिस टेस्ट. सो ऑल द बेस्ट. लिंक फॉर दिस AIMT इज देयर इन द डिस्क्रिप्शन. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू Unacademy, and this is session on question of the day. And in this session we will discuss a question on time and work. The question is advanced question. Student मुझसे पूछते हैं कि सर why you are solving always one advanced question in these question of the day series. Remember, if you solve one advanced question, it contain 3 basic question. तो अगर आप एक advanced question तैयार कर लेते हो, if you solve one advanced question, क्योंकि advanced question में कई stages में conditions होती है. If you solve one advanced question, तो इससे आपके 3 basic question तैयार हो जाते हैं. Right? That's why the question that we use in this question of the day series will be somewhere difficult side पर question होते हैं, because CAT में if you see this last 5 to 7 year CAT, 3 to 4 question are difficult, 5 to 7 question are moderate, 14 क्वेश्चन इजी होते हैं. लेकिन उनको ढूंढना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कौन सा क्वेश्चन इजी है. अगर आपने गलत क्वेश्चन सेलेक्ट कर लिया तो आपका टाइम चला जाएगा, डिमोटिवेटेड हो जाओगे. आपको लगेगा यार मैंने इतना पढ़ा हुआ है टाइम एंड वर्क, या मैंने अर्थमेटिक इतना पढ़ा हुआ है लेकिन मेरे से क्वेश्चन नहीं हो रहे. दिस इज रॉन्ग सिलेक्शन. ये भी बहुत जरूरी है कि आपको सिलेक्शन भी सही से करना चाहिए. तो इन क्वेश्चन ऑफ द डे सीरीज में हम आपको जिस तरह क्वेश्चन देते हैं, किस तरह से हमको करना है, कहीं ना कहीं आपको एक आइडिया मिलेगा हाउ टू अटेम्प्ट दीज टाइप ऑफ क्वेश्चन, और कौन से क्वेश्चन छोड़ने हैं. इन क्वेश्चन को करने से आपको ये भी आइडिया हो जाएगी कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है, कौन सा नहीं छोड़ना है. राइट. सो टुडेज क्वेश्चन इज एक टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है. Liba and Lima are 2 painters. Liba takes 3 hours to paint 10 chairs and 4 hours to paint 12 tables. Lima can paint 12 tables in 3 hours and 10 chairs in 4 hours. They get
an order to paint 200, this is the order, 200 chairs and 200 tables. What is the quickest time in which they can deliver the order? Assume that to paint each table or chair only one of them can work. मतलब कि जो टेबल या चेयर किसी पर्सन ने स्टार्ट कर दिया पेंट करना, तो शी विल एंड दैट चेयर या टेबल, राइट? जब आपने कोई एक काम स्टार्ट कर दिया तो आप उस काम को पूरा फिनिश करोगे, बीच में कोई आपकी हेल्प नहीं करेगा। लेकिन हाँ, ये हो सकता है कि अगर किसी ने अपना काम फिनिश कर दिया तो वो जाके दूसरे की हेल्प कर सकता है, राइट? दिस इज द कंडीशन। अब हम देखते हैं क्या क्या हमारे पास इस क्वेश्चन में है। तो वी हैव 2 person, 2 painter, Liba and Lima. This Liba can paint 3 hours. It takes to paint 10 chairs, and it takes 4 hours to paint 12 tables. ठीक है? सेम वे जो लीमा है, Lima takes 3 hours to paint 12 tables and 4 hours it takes to paint 10 chairs, right? So if you want to finish the work in fastest time, earliest time, so we will give tables to the person who is quick और चेयर उसको देंगे जो उस पार्ट में क्विक हो। तो आप यहां पर ऑब्जर्व कर सकते हो कि लीमा इज फास्ट ऑन टेबल पेंटिंग एंड लीबा इज फास्ट ऑन चेयर पेंटिंग। लीमा जो है एंड लीमा इज फास्ट ऑन टेबल्स एंड लीबा इज फास्ट ऑन चेयर। ये मुझे समझ में आ गया इन दिस कंडीशन कि लीबा इज फास्ट ऑन चेयर, लीबा इज फास्ट ऑन चेयर एंड लीमा इज फास्ट ऑन टेबल। तो मैं पहले यही करूंगा, आई गिव देम work according to their efficiency. So either it paint 10 chair in 3 hours, so it will take 200 chair, it will take 60 hours, right? 10 20 3 20 60 hours. Same way it paint 12 table in 3 hours, so it will take to paint 200 table in 3 into 200 by 12 or 50 hours. Now what does this mean? It means that Lima will finish his work or her work in 50 hours. Still इसको लगेंगे 60 hours. तो पता मैं क्या करूंगा, मैं इस स्टेटमेंट को हटा दूंगा। पॉइंट ये होगा कि हम देखेंगे कि जब लीमा 50 आवर्स में काम खत्म कर लिया है। देखो अच्छा कॉन्ट्रैक्टर क्या होता है, अच्छा मैनेजर क्या होता है। जैसे आप मैनेजर बनोगे किसी कंपनी में जब आप एमबीए कर लोगे अच्छे कॉलेज से, तो आप मैनेजर, अगर यही आप किसी कंपनी मैनेजर हो, इसलिए काम डिस्ट्रीब्यूशन करते हो, तो आपको लगेगा यार लीमा ने काम खत्म कर लिया, लीमा खाली बैठी है और इधर लीबा अभी भी चलेगी क्योंकि वो 60 आवर्स लगते हैं। तो आप क्या करोगे, लीमा से बोलोगे चलो अब तुम जाके इसकी हेल्प करो। तो अब हम क्या करेंगे, हम देखेंगे 50 आवर्स में ये कहां पर होगी। तो देखो 3 आवर्स में it paint 10 chair, तो in 50 hours it will paint 500 by 3 or 166.67. Now this is very important. अब हुआ क्या कि in 50 hours लीबा ने 166 चेयर्स तो पूरी फिनिश कर दी होंगी और वो एक अगली चेयर पर 0.67, अच्छा 0.67 जब हम लिखते हैं 0.67 इज 2/3 पार्ट। इसका मतलब 2/3 पार्ट ऑन द नेक्स्ट चेयर इज फिनिश्ड एंड 1/3 पार्ट रिमेनिंग। ये पार्ट अभी रिमेनिंग है उसका, तो इस पार्ट को मैं अलग से कराऊंगा। वी विल फिनिश दिस पार्ट सेपरेटली। मेरे पास एक पार्ट हो गया कि हाँ लीमा जो है अपना एक लीबा जो है अपना 1/3 पार्ट रिमेनिंग करेगी। वो कैसे करेगी उसको मैं अभी कैलकुलेशन में लेके आऊंगा बिकॉज ऑप्शंस आर वेरी क्लोज। दिस इज, अच्छा एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखो ये ऑप्शन ना 55 hours and 48 minutes and this option is 55 hours 45 minutes. These two are very close. केवल 3 मिनट का आंसर है डिफरेंस है। तो 99% चांसेस है कि इन दोनों से कोई आंसर होगा, बट ये एग्जैक्ट निकाल लेना बड़ी बात है कि हाउ कैन यू फाइंड दैट करेक्ट आंसर। और कंफर्म होगा कि आपको उस लेवल पे सोचना पड़ेगा। अच्छा नाउ हमको ये तो समझ में आ गया कि भाई हमारी कितनी चेयर फिनिश हो गई है। वी कंप्लीटेड 167 चेयर्स फिनिश्ड, राइट। हमारी 167 चेयर फिनिश्ड हो गई है। अभी एक 1/3 पार्ट अभी रिमेनिंग हो, दोनों मैं भी आगे बताऊंगा कैसे उसको मैनेज करेंगे हम। नाउ
लीबा 10 चेयर इन 3 hours, तो 1 चेयर इट विल टेक 18 मिनट, ठीक है। और उसी के साथ साथ लीमा 10 चेयर इन 4 hours, तो 1 चेयर 24 मिनट। तो इसका मतलब अब अगर लीबा जो है एक चेयर 18 मिनट बनाती है और लीमा जो है एक चेयर 24 मिनट बनाती है, तो इन दोनों को ले लो एलसीएम, तो 18 और 24 का एलसीएम होगा 72 मिनट। तो मैं कह सकता हूं इन 72 मिनट सी विल प्रिपेयर 4 चेयर, सी विल प्रिपेयर 3 चेयर, 24 3 जा 18 4 जा, तो टोटल 7 चेयर प्रिपेयर्ड, राइट। इसका मतलब इन नेक्स्ट 72, मैंने जानबूझ के ऐसा लिया क्योंकि तो हम टाइम को बराबर करेंगे 24 18, जिससे हम देखें कितनी चेयर बनती है। और क्योंकि देखो यहां पर 167 चेयर फिनिश हो गई, स्टिल 33 चेयर लेफ्ट, हमको 33 चेयर अभी और बनानी है। पता नहीं क्या करने जा रहा हूं। अब आप देखो जरा, 7 चेयर 72 मिनट इंटू कर लो 4, क्योंकि देखो 7 4 जा 28, 33 से कम है, और अगर 7 5 करूंगा 35 क्रॉस हो जाएगा, तो मैं पहले 4 दूंगा। दिस इज 72 इंटू 4 288 मिनट, तो मेरे पास 288 मिनट और हो गया। 4 इंटू 7 28 चेयर्स बन गई हैं। अब देखो अब मुझे केवल 5 चेयर बनानी है, ध्यान समझना। अब लीबा एंड लीमा, देखो अगले 18 प्लस 6 मिनट, क्योंकि लीबा को लगता है 18 मिनट, और वो 6 मिनट में वो चेयर पूरी कर देगी जो उसे छोड़ी हुई थी, 1/3 पार्ट रिमेनिंग था। देखो ये पूरी चेयर करने में 1 चेयर करने में 18 मिनट, तो 1/3 करने में लेगी 1/3 ऑफ 18 मिनट, 6 मिनट। तो ये अब अगली चेयर 6 मिनट में पूरी कर लेगी। लीमा 24 मिनट, तो अब इन 24 मिनट में कितनी चेयर और बन गई? 2 चेयर और बन गई। अभी आप कंफ्यूज मत हो ना, ये जो 6 मिनट में से चेयर पूरी की है वो हम ऑलरेडी यहां पर काउंट कर चुके हैं। दैट चेयर वी काउंटेड इनिशियली, वो चेयर हम ऑलरेडी काउंट कर चुके हैं, है ना। हम लीबा में वो चेयर एक चेयर ऑलरेडी काउंट कर चुके हैं, तो 24 मिनट में 2 चेयर और बन गई। इधर 28 प्लस 2 30 चेयर्स हो गई। अभी मेरी 3 चेयर्स बाकी हैं, स्टिल 3 चेयर्स लेफ्ट। अब वो 3 चेयर कैसे बनेगी? देखो अब लीबा क्या करेगी, 18 मिनट में एक चेयर बनाएगी, 24 मिनट में एक चेयर। अब अगली चेयर, क्योंकि 2 चेयर और बन गई, अब अगली चेयर ये 18 मिनट और लेगी, 36 मिनट, क्योंकि यहां पे तो 48 हो जाएगा, तो इधर 36 मिनट में 3 चेयर बन गई। तो मेरा टोटल आंसर क्या हो जाएगा? 288 और 24 एंड 36, दिस इज 348 मिनट या 5 hours 48 मिनट। वी कैन से दैट in 5 hour 48 minute और 50 hour इनिशियल वाले, it will take total of 50 hour 55 hours 48 minute। so this is very good question। मैंने आपको एक्सप्लेन किया, मैंने टाइम लिया, मैंने बहुत चीजों को डिस्कस किया इस क्वेश्चन में। when you solve this question you can solve और you can make these calculation fast, तो आप जल्दी भी कर सकते हो, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहां पर इस क्वेश्चन में आप 1 मिनट और 3 मिनट की गलती से आपका आंसर हो जाएगा, तो आपको बहुत बहुत क्लोज आंसर लाना पड़ेगा। सो दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, टाइम एंड वर्क का एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। वी विल मीट यू विद सम मोर इंटरेस्टिंग क्वेश्चन इन टाइम एंड वर्क। टिल देन ऑल द बेस्ट।